नमस्कार दोस्तों। ओशो का कहना है कि देयर इज नो गोल इन लाइफ। पर अक्सर हमें तो ये कहा गया है कि हमें अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रयास करते रहना है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? तो इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे। मैं अपने को पैनलिस्ट अविनाश और डॉक्टर वर्षा के साथ इस सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू जानना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। What is the goal of life and how can it be achieved? My whole life I have been telling you there is no goal. Life is its own goal. There is nothing outside life that you have to achieve. All achievement is the projection of the ego. The very idea of achievement is ambition. What you achieve does not matter. Money, power, knowledge, but these are not in any way going to give you life. In fact, in achieving power, in achieving money, in achieving prestige, in achieving any other ambition, you are losing your life. You are sacrificing your life. You are involved into stupid things. And by the side, the life goes on slipping out of your hands. You will realize it only at the time of death. With his shock that I have been trying to achieve the goal of life and I forgot life itself. The goal is always in the future and life is always here. The goal is always far away and life is in this very moment. Trying to achieve it, you will miss it. You don't need to try to achieve life. You are alive. Only dead people can have goals. Living people live. If you want goals to achieve, the grave is the right place for you. Just lie down in the grave, rest in death. I have heard a husband, naturally a hand-pegged husband, because I don't know another kind. Everybody understands it. That if you want to be a husband, soon you will be an hand-pegged husband. That is a natural growth. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बस एक क्विक क्वेश्चन कि वर्षा और अविनाश, आप लोग इस स्टेटमेंट पे कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कि देयर इज नो गोल इन रियलिटी और वी शुड नॉट रन आफ्टर एनी गोल? वर्षा, I agree. कि देयर इज नो गोल, देयर शुड नॉट बी गोल। Yeah. अच्छा, अविनाश?
मेरा इसमें ये पॉइंट है कि सब चीज अलग अलग है, गोल एक अलग चीज होता है, लाइफ एक अलग चीज होता है, तो वी शुड नॉट मिक्स ऑल दो। अच्छा, दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि देयर शुड बी एनी गोल और देयर शुड नॉट बी एनी गोल। तो आप ओशो की इस बात से कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं। और एक बात और, हो सकता है कि यहाँ पे वो कुछ और बोलना चाह रहे हो या फिर कुछ और पॉइंट आउट कर रहे हो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट ही रियली मीन्स टू से। बट आपका क्या विचार है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। This hen-pecked husband died. The wife ordered a beautiful marble grave for him and ordered that his name should be written in golden letters and the words, "Rest in peace." But when the will of the husband was opened, he has given all his money, land, house, everything to charitable institutions. Nothing for the wife. That was his revenge. But a husband can take revenge only when he is dead. Whole life the woman has tortured him. Now was the time. Listening to the will, she rushed to the craftsman who was making the marble grave, and he said to him that you have to add few words more. He said, but this is enough. He said, no, it was enough before I came to know his will. Now write, rest in peace till I come. You have a little time to rest in the grave. There you can imagine all kinds of goals because you will not be losing anything. You are already dead. But while living, be a little more kind to yourself. While living, live. And live intensely and totally. In India, in Ahmedabad, where I had the greatest number of sannyasins, I used to go there. In Ahmedabad, I used to like only one place, and that was the place where Jayanti Bhai, who used to be my driver, will speed beyond the limit permitted. And I will say that, why you do it? I like that place. He said, that's why. I speak here because I don't want you to remember Ahmedabad because of this thing. And what was the thing? There was a board on the bridge saying, Liva little heart, Sippa gold spot. And certainly I have forgotten everything about Ahmedabad. But this Liva little heart, I cannot forget. This is the very essence of my religion. Live a little heart. Forget about gold spots.
There is no goal anywhere. Existence is not moving to some target. And it is good that it is not moving towards some goal. Because if the goal is there, sooner or later it will be achieved. Then what? Sooner or later, that goal will be achieved, and then what? So, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, ओशो की बातें सुनी, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी-सी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं, कि यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो गोल, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर मी। क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है ना, कि वी शुड हैव गोल्स, वी शुड हैव टारगेट्स, वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर आवर गोल, वी शुड वर्क हार्ड टुवर्ड्स आवर गोल। देन सडनली ये क्या, कि गोल हमें ज़रूरत नहीं है। चलो मैं पहले आप लोग से पूछता हूँ, वर्षा इस पे क्या कमेंट देना चाहोगे आप? क्या लगता है तुम्हें? लाइक जैसे उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं लाइक पावर, मनी या फेम, कुछ भी जो चीज़ है, अगर हम लोग उसके पीछे भागते हैं, गोल क्या होता है? गोल यही होता है कि हम कोई एक लक्ष्य लेते हैं कि उसे फुलफ़िल करना है करके। हुँ, तो हम वही चीज़ को उसी चीज़ के ओर दौड़ते हैं, बट इस चक्कर में हम लोग और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, जो देख सकते थे, उससे शायद ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, वो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली अगर गोल ना होना या फिर होना, ये एक लाइक पर्सनल चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पिरिचुअली अगर सोचा जाए, तो अगर गोल रहा तो अपनी खुद की लाइफ जो एक्चुअली हम लोगों ने फुलेस्टली लीड करनी है या फिर कंप्लीटली उसे एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाना है, तो वो नहीं कर सकते अगर पर्टिकुलरली एक गोल के पीछे दौड़े। हुँ। अविनाश जी, वर्षा जी के इस मैं स्टेटमेंट को आप क्या क्या बोलिएगा? जो वर्षा ने बोला अभी और जो ओशो ने बोला, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए, कि क्या नहीं, है? नहीं, मैं पहले हाँ, शुरू से मतलब जो ओशो जी ने बोला मैं उसका पहले एक शॉर्ट समरी क्योंकि मैंने थोड़ा-सा नोट किया। तो हुँ, 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 ओशो जी हुँ। ने बोला कि क्वेश्चन था कि गोल क्या होता है ज़िंदगी का और उसको कैसे अचीव करें, ठीक है? हुँ, तो ओशो जी ने बोला कि ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। और फिर हुँ। उन्होंने बोला अगर तुम ज़िंदगी में गोल बनाओगे तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी या लाइफ़ खत्म हो जाएगी। थोड़ा-सा माइक के ज़िंदगी नज़दीक ऐसी आइएगा अविनाश जी, थोड़ा माइक के नज़दीक आइए। हाँ, हाँ, अब बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अगर ज़िंदगी से में गोल रखोगे तो ज़िंदगी से ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है? हुँ, फिर उन्होंने बताया कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, गोल क्यों चाहिए? तो गोल कुछ नहीं है, अहंकार का प्रोजेक्शन है, ईगो का प्रोजेक्शन हुँ, उन्होंने बोला, तो हमारे हिंदी वर्ड में अहंकार का प्रोजेक्शन है। फिर उन्होंने ये फर्स्ट पार्ट आंसर कर दिया, फिर उन्होंने फिर से उसको समझाने के लिए दिया, कि देखो जैसे अहंकार का प्रोजेक्शन है उसके थ्रू तुम मानोगे कि मुझे शक्ति चाहिए, मनी चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊँगा, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊँगा। तो वो स्टूपिड है मतलब वो कुछ होने वाला है नहीं उससे। और तुमको लगता है कि तुम्हारा ज़िंदगी का कुछ मकसद है, तो वो मरने के बाद ही पूरा होगा ये समझ लो। अगर तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद है तो ज़िंदगी का एक निहित मकसद है कि जो भी ज़िंदा है वो मरेगा। तो अगर तुम्हारी हुँ, ज़िंदगी का मकसद है तो तुम्हारे मरने उपरांत ही होगा, तो अभी तुरंत जाओ ग्रेव में जाके सो जाओ। फिर उन्होंने उसका एग्ज़ाम्पल दिया कि जो गोल होता है क्यों मतलब ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। लोग तो बोलेंगे ना कि ज़िंदगी का पार्ट है, हम अपने बचपन से सीखे हैं। उन्होंने बोला कि जो गोल है वो फ्यूचर में है, ज़िंदगी जो है अभी है, ठीक है? अब इस चीज़ को जो है फिर उन्होंने एग्ज़ाम्प्लीफाई करने के लिए दिया कि तुमको लगता है कि तुमने जो किया वही तुमको डिफाइन करेगा। तो जो फाइनल उन्होंने एक नहीं एक हस्बैंड वाइफ का जो स्टोरी बताया हुँ, कि हुँ, इट यू थिंक दैट योर गोल यू कैन इवन कंट्रोल, ठीक है? जैसे उन्होंने हस्बैंड ने अपनी बीवी का पूरी ज़िंदगी भर सुना, हैंडपेक जो बोल रहे थे कि ज़िंदगी भर सुना, उसके बाद उन्होंने उसका स्टैच्यू तो बन गया कि रेस्ट इन पीस और सुंदर था। अब हुँ, उसने जो हस्बैंड है लास्ट में उसने पीछे से दिखाया तो उसका विल भी छीन लिया सारा पैसा।
तो वो बोले कि हम्म। जो तुम करोगे वो तुम्हारे गोल पे लिखा जाएगा, तो उन्होंने लिख दिया रेस्ट इन पीस टिल आई कम, तो मजाक। अब मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा, तो एग्जैक्टली जो हमारे तरफ सिखाया जाता है वही है। वही उन्होंने बोला कि तुम्हारा अहंकार है वही तुमको बोल रहा है कि मेरे जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, वैसा नहीं है। हम्म। जो करोगे वो होगा, फल जो हम्म। वही, मतलब उन्होंने कर्मा साइकिल, जो करोगे वो होगा। तो उसके बाद फिर जब तुमको पता है जो करोगे वही होगा, तो थोड़े मजे में जियो, लिव अ लिटिल, जो बोले मतलब खुशी से जियो, मतलब तुमको पता है कि जी ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, तुम गोल सेट कर लिए। और फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि अगर जो एक फेवरेट मेरा एग्जांपल जो एक इस्लामिक टेक्स्ट से आता है, एक बार पूछा गया कि किसी इंसान का क्या मकसद है, उन्होंने उसका गर्दन काट दिया, जब मर गया तो ही उसका मकसद पूरा हो। तो हम्म। जिंदगी का मकसद मरना है, तुम एक इंसान हो जो जी रहे हो, तो जियो, तुम्हारा तो सिर्फ एक ही चीज है, जियो और उसमें मजे करो। और मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ कि गोल्स जो है, आप समझिए किसी प्रोजेक्ट का होता है, उस प्रोजेक्ट का गोल जो प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट लीडर अगर अपना गोल मान तो वो अहंकार है। प्रोजेक्ट का गोल हो सकता है क्योंकि मिलके कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो एक कर्म का एक, और उसका मैनेज करो। ये नहीं सोचो कि गोल नहीं हुआ तो रोएंगे, तो वो सब फिर वही मेनली इन्होंने अहंकार पे ही टारगेट कर रहे हैं। बट आप हम्म। यही बोलना चाहता हूँ ना। हाँ, तो और आप समझिए, आप कुछ बोलो तो बोलो। ये इस टाइप का सेम वीडियो हमने पहले भी किया है, शायद सदगुरु का वीडियो था कि डू वी एग्जैक्टली। हैव एनी पर्पस इन आवर लाइफ, याद है? जी। पर्पस ऑफ लाइफ। तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्टेक्स्ट का वीडियो है ये, सेम मतलब थीम सेम है, पर्पस हो चाहे गोल हो। तो उसमें भी मैंने एक बात कही थी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि वी हैव ओनली वन गोल, दैट एटलीस्ट वी हैव टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। चाहे जैसे भी तुम सर्वाइव करो, हेल्दीली, हेल्दी रहते हुए आपको जिंदगी को लॉन्ग से लॉन्ग समय तक इस प्लैनेट पे सर्वाइव करना है। एज ए क्रिएचर हम सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ, ये कई जनरेशन, कई पीढ़ियों ने के सर्वाइवल के कारण ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और अगर मैं सर्वाइव नहीं करूंगा तो ये चेन टूट जाएगा। सो केवल मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सारे ह्यूमन, सारे क्रिएचर का यही है। कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी आप देख रहे हैं, सब एक चेन के थ्रू ही वहां तक पहुंचे हुए हैं। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो वो चेन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इसी तरह से हर एक प्रजाति या हर एक कोई जीव है, कुछ क्रिएचर, वो गायब हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है? तो मेरा तो ओवरऑल यही है कि जिंदगी में इंसान को सरवाइव करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपके छोटे बहुत टारगेट्स आते हैं दैट यू हैव टू अचीव। बट यहाँ पे जो बात कही गई है कि वी डोंट हैव एनी गोल, इसको थोड़ा मैं डीपली ले जाना चाहता हूँ कि गोल किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में गोल ना होने की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल क्या होता है, जैसे ही हम गोल बांधते हैं, हम लोग एक तरह से अपने गले में एक रस्सी बांध के एक खुट्टी से बांध देते हैं, जैसे गाय भैंस को बांधा जाता है ना, जानवर को बांध दिया गया, वो बांध दिया गया। अब वो जानवर का जिंदगी उस रस्सी के लेंथ में ही घूमते रहता है हमेशा। इन द सेम वे एक गोल भी यही होता है। अगर हम किसी गोल को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं कि वी हैव टू बी या वी हैव टू अचीव दैट थिंग, तब हम एक तरह से अपने आप को बांध चुके हैं। और यही गोल, इस जो शायद ओशो जी जो बोलना चाह रहे हैं कि गोल कहाँ खतरनाक हो जाता है, वो यही होता है कि जब हम बंध जाते हैं तो वी बिकम गुलाम, स्लेव। एंड आफ्टर दिस स्लेवरी देयर इज वेरी लो, और कह सकते हैं कि जीरो प्रोबेबिलिटी टू लिव लाइफ इन टोटलिटी। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमको जिंदगी में जीना है रगड़ के एकदम, तब तुम किसी चीज के गुलाम नहीं बन सकते। और वो गुलामी किसी इंसान, किसी शोहरत के अलावा आपका खुद का बनाया हुआ एक मेंटल ट्रैप व्हिच इज योर गोल, आप उसमें भी अगर फंसे हुए हो, स्टिल यू आर ट्रैप्ड, स्टिल यू आर स्लेव। एंड आपको वो फिर जीने नहीं देगा। इसको एक सिंपल सा एक मेटाफोरिक चीज बताता हूं मैं। मान लेते हैं कि एक एक कमरा है, कमरे में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए पूरी दुनिया है, दुनिया में उजाला है, अगर उजाला रहेगा तो हम हर चीज देख सकते हैं, कुछ भी चीज का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट हमने क्या किया, एक गोल जब हम बांधते हैं और मेंटली जब हम उसी से जुड़ जाते हैं केवल, तो वहां प्रॉब्लम आती है कि इट्स मीन हम लोगों ने बोला कि सूरज तुम बंद हो जाओ। अब मैंने एक टॉर्च लिया जिंदगी में, अब उस टॉर्च से ही दुनिया देखना शुरू किया।
कि मेरा टॉर्च अब मेरा गोल है। अब यही इस टॉर्च के थ्रू जो रोशनी निकल रही है, बस मैं दुनिया उतना ही देख पा रहा हूँ, जबकि दुनिया अथाह थी। पर मैंने अपने आप को बाँध के इतना लिमिटेड कर दिया, इतना दायरा अपना कम कर दिया कि मैं अगर गोल अचीव कर भी लूँ, लोगों को बोलूँ भी कि देखो आई हैव अचीव्ड दैट थिंग, स्टिल समबडी हू हैव लिव्ड हिज और हर लाइफ इन फुल फ्लेज, दैट पर्सन विल लाफ कि यार तुमने क्या-क्या मिस किया, यू हैव नो आइडिया। सो ओशो शायद इसी बारे में बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ जेनेरिक टर्म की बात की जाए कि यार गोल होना नहीं चाहिए हमारे लाइफ में। छोटे-छोटे टास्क तो रहेंगे ही, वो तो करना ही है। लेकिन अगर हम अपने आप को एज़ ए स्पिरिचुअली सोल अगर हमने बाँध दिया ना किसी चीज़ में, तब वहाँ प्रॉब्लम आता है। जो भागवत गीता में अध्याय 1 में जो कृष्ण का जो रोना है, रोंदलू नेचर दिखाया गया है, वो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसने एक अर्जुन का गोल बाँधा हुआ था कि हाँ, अर्जुन का अर्जुन का स्टार्टिंग फर्स्ट हाँ चैप्टर में कि जब अर्जुन रो रहा हम्म, है कि नहीं मुझको नहीं लड़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो कृष्ण यही समझाते हैं कि तुम बेटा किसी एक गोल में फँस चुके हो। पर जी ऐसा नहीं है कि तुम ज़िंदगी को तुम एक गोल से अगर बाँध के चलोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। यू शुड बी एबल टू डिसाइड एट द मोमेंट कि हमें क्या किस डायरेक्शन में जाना है और वो तभी पॉसिबल है जब तुम किसी पर्टिकुलर गोल से बंधे हुए नहीं हो। आपका एट द मोमेंट कोई टारगेट हो सकता है, आपका एट द मोमेंट कोई माइलस्टोन हो सकता है कि ये करना है टू सर्वाइव। दैट इज़ बेसिक थिंग्स, बट दोज़ थिंग्स आर नॉट गोल्स ऑफ आवर लाइफ। गोल एक बहुत ही ब्रॉडर, बहुत ही बड़े एस्पेक्ट से यहाँ पे गोल की बात हो रही है। नॉर्मल गोल नहीं कि अच्छा मैं ये एग्ज़ाम निकाल दूँ, मेरा एक गोल है लाइफ का। ये गोल नहीं है लाइफ का। ये एक स्टेज हो सकता है, ये एक इवेंट हो सकता है ऑफ योर लाइफ, बट दैट कांट बी योर गोल ऑफ योर लाइफ। वर्षा, कुछ बोलना चाहोगे इस पे? जी। इन शॉर्ट यही वो लास्ट वाला क्या सेंटेंस कहा था, एक बार फिर से रिपीट करोगे? मैंने ओशो जी ने लास्ट वाला जो सेंटेंस बोला था ना? हाँ, यही तो कि आपको फुल फ्लेज यहाँ पे देखिए फिर से प्ले कर देता हूँ। Because if the goal is there, sooner or later it will be achieved. देन Then व्हाट यू विल डू? what? हुँ। तो कि इसी पे अगर मैं गोल अचीव हो बोलूँगी गया, हाँ। हाँ जी, हुँ, इसी पे मैं बोलूँगी कि अगर गोल अचीव हो गया तो क्या करेंगे? हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले वो किया था ना लग्ज़री वाला जो वीडियो किया था, उसमें भी वही बोला था कि लग्ज़री जब एक टाइम पे जब लग्ज़री से भी इंसान बोर हो जाता है। सेम हुँ, लग्ज़री से बोर हो जाता है मतलब कि उसने वो चीज़ अचीव कर लिया इसलिए बोर हो जाता है सॉरी। तो सेम अगर हम लोग लाइफ़ में कोई भी चीज़ को अगर गोल को अगर वो अचीव कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अल्टीमेटली उनका कहना यही है कि जैसे प्रशांत जी अविनाश जी ने बोला कि हम लोगों का लास्ट में सभी को मरना है। तो यही एक गोल हो सकता है बट गोल जो है या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोगों का अ, क्या कहेंगे एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या होगा उसके लिए? अ, देखो ये गोल मैं एक्चुअली पर्सनली मैं डेथ को भी गोल नहीं मानता। जो चीज़ इनेविटेबल है, जो आना ही है तो व्हाई यू आर मेकिंग दैट थिंग योर गोल फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं पर्सनली डेथ को भी गोल नहीं मानता। यार वहाँ तो तुम अपने आप स्लाइड कर रहे हो। तो तुम उसे गोल बनाओ चाहे ना बनाओ, इस नेचर ने ऑलरेडी वो डिसाइड किया हुआ है। But हुँ, when I'm alive, so being an alive creature, my only goal should be to execute every aspect of being alive. जीवन रहने का, जीवित रहने का जो मकसद है, जो मतलब है, उसके सारे-सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर सकूँ। तो जीवित रहने का मतलब क्या है? जीना। यू जीना हैव टू लिव फुलेस्ट इन फुल फ्लेज। फुल फ्लेज हुँ, अच्छा ये बहुत ही अजीब शब्द लगता है। फुल फ्लेज अच्छा अविनाश जी बताइए। व्हेन वी से कि लिव लाइफ इन फुल फ्लेज, ये बहुत बार आपने सुना होगा, इन टोटैलिटी, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है? आपने ये शब्द बहुत बार सुने होंगे कि पूर्णतः जियो, टोटैलिटी में जियो, फुल फ्लेज में जियो, इसका मतलब क्या है यार? फुल फ्लेज में क्या मतलब पहाड़ से कूद जाऊँ, मतलब क्या करूँ? नदी में बिना बिना बॉडी वो गार्ड का कूद जाऊँ, क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? बताइए, अविनाश जी क्या लगता है आपको? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ जो आपने बोला पहले फुल फ्लेज वाला, उस पे अगर आंसर करूँ या फिर मतलब मैं ठीक है। हाँ, ये फुल फ्लेज वाला कि जो ये है होता क्या है ये? ओके, तो पहले मैं इस वीडियो का जस्ट कंप्लीट करता जो गोल वाला चल रहा था डिस्कशन। तो इस वीडियो के एंड पे शायद से इन्होंने बोला कुशो जी ने कि जो हुँ, ज़िंदगी का फिर गोल क्या है? तो उन्होंने बोला मेरे रिलीजन का गोल है लिव अ लिटिल
हाँ, मतलब मजे में जियो। वो उन्होंने गोल बताया, ठीक है? और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आप जियो सनातन धर्म की रक्षा, मतलब कांस्टेंट इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसका रक्षा के लिए तुम जियो। मतलब इफ आई हैव टू फाइंड अ गोल, मटेरियल गोल, ठीक है? और अब आप आए हो लिव, जो कुछ है ना, लिव अ लिटिल फुलर या फिर फुल फ्लेश्ड फुल जियो। फ्लेज में जीना, टोटलिटी में जीना, इसका एक आम आदमी क्या समझे इसमें कि क्या करना होगा हाँ, मुझे इसका उसके मतलब लिए? ये, हाँ, इसका मतलब है कि आप मोमेंट में रहिए। जैसे मान लीजिए अभी आप इस वीडियो में वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है? तो आपके कान में वीडियो का आवाज़ आना चाहिए, आप वो ज्ञान कर रहे हो और हाथ से अगर कुछ काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान वहाँ पे भी होना चाहिए। बट क्या होता है कि हम वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो में अगर मैंने कुछ ऐसा बोला या खाँसा, तो जिससे वैसी खाँसी एक आदमी की याद आई, आप वहाँ चले गए। तो आप फुल में नहीं जी रहे हो, आप अपने मन के अंदर ही, आपके आधे से ज़्यादा सेंसेस आपके मन में ही एंगेज है। बट आपके आजू-बाजू बहुत कुछ हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चिड़िया हो सकता है एक नया तरह का तर्कब दिखा रहा हो, जो आप डिस्कवरी चैनल जब उसको ज़ूम करके दिखाएगा तब आप देखोगे। आपके आँख के सामने हो रहा था, बट आप मेरी बात सुने या लाल कलम देख के कुछ लाल से एक लाल आदमी याद आ गया, लाल आदमी से कुछ और चले गए। तो आप समझिए दैट्स हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इसी को फुल फ्लेज में जीना मतलब अपने सेंसेस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, मोमेंट को एन्जॉय करो। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, आपको पता चलेगा उसमें कितना चावल है, दाल है, मीठा है, अरे मतलब आप कोई भी चीज़ च्यू करो। आपका बॉडी एक बहुत ही अच्छा मशीन है। आप फ़ोर्सफुली अगर उसको किसी चीज़ पे एंगेज नहीं करोगे, तो अच्छे चीज़ों पे भी आपके अराउंड सराउंड पे बहुत कुछ हो रहा है और यू विल लिव इन द फुलेस्ट। दैट्स व्हाट इट इज़ फुलफिल। वर्षा, मैं यहाँ तुम्हारे पे अकॉर्डिंग क्या बोलूँ लगता है? हाँ, क्या क्या मतलब ये मत समझना कि मुझे अध्यात्म से या फिर रिलीजियस टेक्स्ट से कोई आंसर देना है, या फिर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट यू फील टिल इन योर लाइफ? अभी तक जिंदगी में तुमने क्या फील किया कि तुम्हें लगता है कि दैट मेक्स योर लाइफ कंप्लीट एंड इन यू आर लिविंग योर लाइफ इन फुल फ्लेज? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेज़ेंट में जीना ज़्यादा फुल फ्लेज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू पास्ट में या फ्यूचर में जीना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आइदर पास्ट में रहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये नहीं होना चाहिए था या फिर ये होना चाहिए था। और नहीं तो फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के टेंशन लेते हैं। हालाँकि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हम लोग मॉल में गए हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और अचानक से याद आया कि नहीं इस चीज़ का भी लोन का ड्यू डेट आ रही है या फिर किसी चीज़ का पेमेंट करना है, तो हम जो चीज़ वहाँ पे एन्जॉय करना वहाँ पे एन्जॉय करना चाहिए था, वो ना करके हम वो टेंशन में चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फुलेस्ट मतलब ये होगा कि आप प्रेज़ेंट में जिए, ना कि पास्ट में या फ्यूचर में। इसीलिए शायद से इस पे उन्होंने मैं वीडियो में हाँ जी, बोलिए। हाँ, इस पे आपने जो बोला, इस पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि गीता में यही दिया है कि कैसे ये हो जाता है। आपने जो बोला ना लोन शब्द, अभी समझिए ये लोन हुँ, शब्द जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे, उन लोगों का भी लोन बाकी होगा। उन लोगों तो वही है कि वो अब लोन से अब वो लोन वाले मेमोरी में चले जाएँगे। तो यही हुँ, गीता में बताता है कि हमारे जो सेंसेस है, ये घोड़े हैं, इसने चखा, इसने लोन वर्ड सुना, बट इट्स योर ड्यूटी टू याद कराना कि नहीं अभी तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुनो, लोन के बारे में मत सोचो। तो हमारे सेंसेस है, कान जो है उसने लोन सुना, कहीं मान लीजिए वर्ड लिखा हुआ लोन है या फिर बैंक का नाम देखे अरे लोन आया, या मूवी देख रहे थे वहाँ पे गुंडा मार रहा है, तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया था। तो उससे हम मतलब अपने सेंसेस परसेप्शन के थ्रू हम अपने मेमोरी में अटैच होते हैं, और जैसे अटैच हो गए बस भूल गए कि अरे मूवी इतना अच्छा चल रहा था, पिटाई खा रहा था सलमान खान, जो भी है। सॉरी, मेरा एक मैं वही इसमें ऐड ये करना है कि ये जो फुल फ्लेज है, पर्सनली मेरा क्या मानना है, बिल्कुल इसी टाइप से है। उसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बोलता हूँ मैं। सेम चीज जो आप लोगों ने बोली ना, कि इफ आई डोंट हैव एनी रिग्रेट एंड इफ आई डोंट हैव एनी फियर, ये दो चीजें अगर मेरे पास नहीं है, आई पर्सनली थिंक दैट आई एम लिविंग इन फुल फ्लेज। ये दो चीजें ऐसी हैं, रिग्रेट जो कि पास्ट से रिलेटेड होता है, और फियर जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड होता है। If you are fearful, you are fearful of something which is supposed to come in the future, which may or may not come. But fear is always about future, and regret is always about your past. It's पास्ट something you have done that you never wanted to do, और वो हुँ, रिग्रेट आपके अंदर ला रहा है। तो आपने ऐसा कुछ काम किया है, या शायद एट द मोमेंट आप कर रहे हैं, क्योंकि एवरी डे इज बिकमिंग योर पास्ट ना विद टाइम। सो आप कुछ कर रहे हैं ऐसा व्हिच इज हुँ, क्रिएटिंग दैट रिग्रेट, एंड इफ यू आर लिविंग इन रिग्रेट, और मतलब रिग्रेट मीन्स पश्चाताप या फिर डर में, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज कर रहे हैं जो कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर वो करना चाहता नहीं है। दैट्स व्हाई दैट रिग्रेट थिंग इज कमिंग।
अगर रिग्रेट नहीं आता तो मतलब आपका बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल सब तैयार करने के लिए। एंड एट दैट टाइम यू विल नॉट फील एनी बर्डन। मतलब हो सकता है किसी और की नज़र में वो गलत काम हो, बट इफ योर माइंड, योर सोल इज़ नॉट क्रिएटिंग दैट रिग्रेट, तो आप बहुत बहुत ही मज़े में कर रहे हो वो काम, ठीक है? तो इफ आई डोंट हैव दीज़ 2 थिंग्स, रिग्रेट एंड द फियर, देन परहैप्स आई विल बी लिविंग ए लाइफ विथ फुल टोटैलिटी। मतलब कि जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। किसी डर के कारण मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यार आज ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये डर है, या फिर ऐसा करो नहीं तो ऐसा नहीं किया था ना तुम पिछले, ये रिग्रेट है। तो वो मुझे नहीं चाहिए। इफ ए पर्सन कैन बिकम, परहैप्स इफ एनी पर्सन विल ऑप्ट फॉर दीज 2 क्वालिटीज ओनली, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, तो शायद वो ऑलमोस्ट फुल फ्लेज में घुसने लगेगा। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में अध्यात्म हो चाहे ना हो, धर्म अधर्म कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि ओवरऑल वो एक क्रिएचर है ऑन दिस प्लैनेट। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। इफ ये 2 चीज़ें ही जो इंसान करने लगे, समा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान रिग्रेट में नहीं है, इट्स मीन उसने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। अब उस इंसान को धर्म सिखाओ चाहे मत सिखाओ, वो इंसान धर्म जानता है चाहे नहीं जानता, वो ऑलरेडी धार्मिक है। इट डज़न्ट मैटर। अगर वो इंसान फियरलेस है, तो वो ऑलरेडी बहुत सुपीरियर ह्यूमन बीइंग है। तो सुपीरि उस इंसान को वैसे भी धर्म की ज़रूरत ही नहीं है। वो उस धर्म से बियॉन्ड हो चुका है। तो ठीक है, तो मैं वही इसपे बोलता हूँ कि हाँ, बोलिए। हाँ, यही जो आप बोले, तो जो आपका जो तरीका है ना कि मतलब फ़ियर और रिग्रेट से दूर हो जाओ। तो एक तो है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप मान लो कि आप फ़ियर और रिग्रेट से दूर हो रहे हो, ठीक है? तो ये जो है इनका जो है मान लो कि तुम फ्री हो, और जो दूसरा है कि आप पढ़-पढ़ के समझो कि आप फ्री कैसे हो। तो मतलब वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों तो हाँ, मतलब फ़ियर को छोड़ना भी मुश्किल है। मतलब आप जैसे बोल रहे हैं ना कि फ़ियर छोड़ दो, तो क्यों छोड़ूँ? कैसे आप छोड़ूँ? नहीं छोड़िएगा, आप नहीं छोड़ सकते फ़ियर। आप ना फ़ियर को छोड़ सकते हैं, ना आप रिग्रेट को छोड़ बिल्कुल। सकते हैं। आपके कर्म ऐसे होंगे कि वो आपको छोड़ के चले जाएँगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं फ़ियर को छोड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड में चलता है ना, अगर हाँ, मैं जैसे कुछ गलत हाँ, काम कर रहा हूँ और ये बोलूँ कि नहीं-नहीं मैं रिग्रेट मैं नहीं लूँगा, चाहे जो हो जाए रिग्रेट नहीं लूँगा। नहीं, दैट रिग्रेट विल कम टू यू। अगर मेरे कर्म जैसे वैसे होंगे, दैट दैट थिंग विल कैप्चर मी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाँ, आई एम नॉट लिविंग देम, दे विल लिव मी। तो मेरे कर्म ही वैसे हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है वो फ़ियर, दैट इवन दैट्स जस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे मेरा म जस्ट इमेजिन कीजिए अविनाश, एक बहुत ही सिंपल मेटाफोरिक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, स्टिल मैं दे रहा हूँ। आपका कोई एग्ज़ाम है फ्यूचर में, 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है। आपने लेकिन बहुत ही अल्टीमेट और गज़ब तैयारी की हुई है। एक पुरुषार्थ जो एक इंसान कर सकता है, उस परीक्षा के लिए आपने किया हुआ है। ये होने के बाद मैं एक्सटर्नल फैक्टर चाहे कितना भी कोशिश करूँ, कि अविनाश जी आप इससे फेल हो जाओगे। ये आपका ज़िंदगी खत्म कर देगा। बिलीव इट और नॉट, एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स, एनी सॉर्ट ऑफ फियर मॉन्गरिंग इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। क्योंकि फियर हमेशा बाहर से आता है, और जैसे ही आपने वो तैयारी नहीं की है, मैं चाहे जितना भी मोटिवेट कर दूँ आपको, यू नो दैट फियर विल ऑटोमैटिकली कम। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे कर्म उस फियर और रिग्रेट से हमें मुक्ति दिलाता है। तो ओके। फाइनली फाइनली कुछ और बोलना चाहते हो वर्षा? वही कि रिग्रेट और फ़ियर नहीं करना चाहिए, मीन्स पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ेंट में रहो और बढ़िया से लाइफ़ जियो। देखो, एक मैं इस पे एक बात बोल देता हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पास्ट में मत रहो, फ्यूचर में मत रहो। बट मेरा मानना है कि यू कैन नॉट अवॉइड योर पास्ट एंड यू कैन नॉट अवॉइड योर फ्यूचर। यू कैन नेवर, एंड परहैप्स यू शुड नेवर। अदरवाइज़ आप पास्ट को याद नहीं करोगे तो आपको मिस्टेक्स जो आपका लर्निंग है ना, पूरा लर्निंग, वो आपका पास्ट ही दे रहा है आपको। हाउ कांट यू बी इन योर पास्ट? जो आपका जो आपका एक्टिविटी होने वाला है, जो आपका प्रिपरेशन है, जो कि आपको तैयारी कर रहे हो, वो आपको फ्यूचर ही दे रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर रहे हो। ये अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो विद सम टारगेट, फ्यूचर देख के ही काम कर रहे हैं ना हम। तो मैं ये थोड़ी बोल सकते हो आप मुझे कि प्रशांत फ्यूचर मत देखो, पास्ट मत देखो। मैं पास्ट के एक्सपीरियंस से ही देख रहा हूँ किस तरह से वीडियो बनाई जाती है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि पास्ट मत देखो, फ्यूचर मत देखो? इसमें इस स्टेटमेंट में परहैप्स ये चीज़ है कि फ्यूचर को देख के डरो मत। और पास्ट से देख के रिग्रेट में मत रहो। रिग्रेट में रहोगे तो पास्ट आपको पकड़ा हुआ है। फ़ियर में रहोगे तो फ्यूचर ने आपको पकड़ लिया। देन यू विल बिकम फ्रीज़ इन प्रेज़ेंट। अगर आप उन दोनों को देखो कि ओके,
तुमसे यहाँ आगे लड़ना है, आई एम नॉट अफ्रेड, और तुमसे मैं पास्ट में मिल चुका हूँ, एंड आई हैव लर्न माय लेसन्स, ओके नाउ आई एम मूविंग ऑन, नाउ माय लेग्स विल नॉट ट्रेम्बल, मेरे पैर कांपेंगे नहीं। तो आई हैव टू सी माय पास्ट, आई हैव टू सी माय फ्यूचर, एट लीस्ट नॉट माय फ्यूचर और व्हाटएवर फ्यूचर आई एम प्रोजेक्टिंग फॉर माई सेल्फ, वो तो मैं देख सकता हूँ ना, इतना इमेजिन, अदरवाइज तो इमेजिनेशन का भी मतलब कहाँ रहा? फिर एक इंसान को कहा जाता है कि वी आर वेरी इमेजिनेटिव, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इमेजिनेटिव? अगर आप फ्यूचर नहीं देख रहे हो तो क्या है? इमेजिन करना ही तो फ्यूचर देखना हो रहा है। तो हाउ कुड यू से कि आप में फ्यूचर मत देखो? मेमोरी का मतलब ही होता है पास्ट पास्ट को कनेक्ट करके रखना। तो आप मेरे ह्यूमन से मेरा इमेजिनेशन छीन लो, मेरा मेमोरी छीन लो, तो बचा क्या? अर्थवर्म। हुँ? तो हुँ। दोस्तों आप अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि फ्यूचर और पास्ट से आप छुटकारा पा सकते हो क्या? और क्या वास्तव में हमें पाने की ज़रूरत है? हाँ, फ्यूचर से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और पास्ट से हमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दो मुक्ति जिस दिन मिल जाए, शायद वी विल बी, जो कहते हैं ना बड़े-बड़े लोग कि बी इन प्रेज़ेंट, अविनाश जी ने भी जो कहा अभी कि बी इन द मोमेंट, हैं? तब इंसान शायद मोमेंट में रह पाएगा। अगर मैं अफ्रेड हूँ फ्यूचर से, तो मैं मोमेंट में खड़े होकर भी मैं मोमेंट में नहीं रह पाता। अगर मैं डरा हुआ हूँ पास्ट से, दुखी हूँ अपने पास्ट से, तब भी मैं प्रेज़ेंट में कितने भी खूबसूरत जगह पे, कितने भी खूबसूरत इंसान के साथ, कितने भी खूबसूरत माहौल में खड़ा हूँ, आई विल नेवर बी हैप्पी। पर अगर मैं यही मैंने अपने पास्ट का अटैचमेंट तोड़ दिया, उसका मेमोरी नहीं तोड़ा है। अगर मैं फ्यूचर से कनेक्शन मैंने बना रखा है, लेकिन डर नहीं रहा हूँ मैं, तब मैं किसी भी सिचुएशन में एट द मोमेंट प्रेज़ेंट में खड़ा रहूँगा। आई विल बी फियरलेस, रिग्रेटलेस, ए कंप्लीट वॉरियर। तो मेरा ये मानना है। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वाइंड अप करता हूँ अविनाश जी, इस वीडियो को। वर्षा, वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और आपके कुछ भी विचार, बहुत डीप वीडियो ऑलरेडी है, आपने जैसा इस वीडियो को देखा। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट। आगे भी इस तरह के वीडियोज़ पे हम वीडियोज़ बनाएँगे, और आप हमसे कनेक्टेड रहिए। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक अगर आपने नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो। और कमेंट कर सकते हैं अपने विचार। तब तक के लिए अविनाश जी, वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में शामिल होने के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।